Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar, and in today's lecture we will be studying simplification using substitution and trigonometric identities. Right, so how can we simplify inverse trigonometric functions using substitution and trigonometric identities? And using this we will be covering some questions from exercise 2.2 and the miscellaneous part. So let us start. So now substitution category, whenever we are having inverse trigonometric functions with higher arguments, heavy arguments, then we use substitution. And if we are having inverse trigonometric functions which are having arguments with trigonometric functions, then we will use trigonometric identities. So there are some suggestions for substitution. The first category, whenever we are having root of a square minus x square, or we can say if we are having root of 1 minus x square. So if we are having root of 1 minus x square, we have to substitute x as a trigonometric ratio such that it will become a formula, right? So we are having 6 trigonometric functions, 6 trigonometric ratios. तो हमारे पास यहाँ पे 6 options है. Either we can put here sin theta और cos theta, या फिर tan, cot, secant या cosecant. तो हमें ऐसा कुछ put करना है जिससे formula बने. तो if we will put here cos theta or sin theta, then obviously it will become a formula, right? So whenever we are having root of 1 minus x square, we will put cos theta या फिर sin theta, ये formula बन जाएगा. Similarly, if we are having root of a square minus x square, सब कुछ same है लेकिन 1 की जगह a square है, तो in this case we will put x in terms of a, cos theta sin theta ही, but in terms of a. So we will put x as a cos theta or a sin theta, right? So here is the or, यानी कि या तो हम a cos theta पुट करेंगे या फिर a sin theta, and in this cos theta or sin theta, right? Now the second category is if we are having root of a square plus x square, or we can say in particular if we are having root of 1 plus x square. So again we are having 6 options. हमें ऐसा कुछ यहाँ पुट करना है जिससे फॉर्मूला बने. सो 10th क्लास में अपने फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है. सो उसी के अकॉर्डिंग वी कैन पुट हियर x एज tan थीटा और cot थीटा. वी कैन पुट x एज tan थीटा और cot थीटा बिकॉज दोनों ही फॉर्मूले बन जाते हैं. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosecant स्क्वायर थीटा. Same here, it is containing a also, so we will put in terms of a but the same pattern. So either we will put a tan theta or we will be putting x as a cot theta. तो just a add हो जाएगा, बाकी same pattern है because ये something plus x square with the root, right? Now the third category, which is root of x square minus 1, root of x square minus 1, or here if we write a square, so in particular I can say root of x square minus 1. So in this we will put x as a secant theta in terms of a secant theta, or we will be putting x as a cosecant theta. ये विदाउट ए है तो यहाँ पे हम x को पुट करेंगे secant थीटा और cosecant थीटा. अगेन 10th क्लास आइडेंटिटी, secant square theta minus 1 is tan square theta and cosecant square theta minus 1 is cot square theta. So because of that only we will be putting these trigonometric ratios. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम secant थीटा पुट करेंगे या cosecant थीटा. तो ये बच्चा कहाँ से आया वो लिख देता है 10th क्लास आइडेंटिटी. आपने किया होगा cos square theta plus sin square theta is 1. सो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट आया है हमारे पास, एंड सेकेंड आया है हमारे पास यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosecant स्क्वायर थीटा. इसी से अगर आप रिवर्स करते हैं तो यू विल गेट secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा एंड cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा. तो ये तीनों कैटेगरी है. जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई टर्म मिला है विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या आर्ग्यूमेंट में है तो हम ये सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे, राइट. सो यू कैन से 95% केसेस में ये सब्सटीट्यूशन हेल्प कर देता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे रेयर क्वेश्चंस आपको मिल जाए जहाँ पे ये हेल्प ना करे, बट हमारी प्रेफरेंस ये रहेगी,
राइट. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए. यू कैन सी दीज आर दी 3 पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, whenever we are having 1 minus x and the argument is also containing 1 plus x, then we will put x as cos theta. Then we will be putting x as cos theta. ठीक है. तो ये भी सब्सटीट्यूशन का है. मैंने यहाँ पुट नहीं लिखा है, बट ये भी सब्सटीट्यूशन का. अगर ऐसा आता है तो आप ये पुट करेंगे. तो यू कैन ऐड हेयर पुट दिस, put x as this. ठीक है. तो ये सब्सटीट्यूशन है. whenever you are having these kind of expressions you can put x like this. So same here, if we are having x 1 minus x and 1 plus x, then we will be putting x as cos theta because we are having the identities of 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. तो identities अगर आपको नहीं पता है तो वो हम बता देते हैं. 1 minus cos theta is very popular identity which is 2 sin square theta by 2. कैलकुलस में काफ़ी यूज़ होगी. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 and also sin theta, half angle identity is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. राइट. ये आइडेंटिटीज़ है. इसके अलावा हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी हम यहीं पे लिख सकते हैं. वो भी काफ़ी यूज़ होती है. ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ भी काफ़ी यूज़ होती है. सो इनके अलावा यू कैन लर्न cos 2 थीटा आइडेंटिटी. cos 2 थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 minus 2 sin square theta cos square theta minus sin square theta and in terms of tan is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो ये cos 2 थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ है. ये 3 आइडेंटिटी तो इसके लिए है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स के लिए. cos 2 थीटा की अलग से आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए. एंड इसी में अगर हम sin 2 थीटा और tan 2 थीटा की भी लिख लेते हैं तो ये सब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हो जाएगी. sin 2 थीटा इज़ 2 sin थीटा cos थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ tan इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ऑल्सो tan 2 थीटा इज़ 2 tan थीटा upon 1 minus tan square theta. So these are the half angle identities and also we are having cos 3 theta, sin 3 theta, वो भी आप याद कर सकते हैं. cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta and sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. And the tan 3 theta identity is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. तो ये आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 11th में सीखी होगी और इन सब का रोल है ITF में. तो ये सब आइडेंटिटीज़ अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी. सब्स्टिट्यूशन में ये हेल्प करेंगे. राइट. इसके अलावा दीज आर दी 4 पॉइंट्स. इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी पॉइंट्स है तो वो भी देख लेते हैं. So whenever we are having root of a square minus x square we will be putting this. Whenever we are having root of a square plus x square तो हम second point के according ये put करेंगे. Third point है root of x square minus a square, then we will be putting either a secant theta or a cos secant theta. Next is if we are having 1 minus x and 1 plus x both in a question, in a particular question दोनों की requirement है, दोनों की involvement है तो हम x को cos theta put करते हैं क्योंकि 1 minus cos theta and 1 plus cos theta दोनों ही identity है. ठीक है. इसके अलावा the point 5 is if this is a part of simplification. If we are having cos with some angle and sine with some angle with the same angle and denominator is also containing cos and sine with the same angle, तो angle should be same. या तो यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस क्योंकि अगर सेम साइन हुआ तो कैंसिल हो जाएगा. इसके अलावा सेकेंड ये कंडीशन बन सकती है कि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस. ठीक है. तो ये 2 कंडीशन बनती है. तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं cos थीटा से डिवाइड करते हैं. जो भी एंगल शुड बी सेम. अगर यहाँ थीटा है तो ये चारों एंगल थीटा होने चाहिए. अगर ये चारों एंगल सेम है एंड cos साइन की रिक्वायरमेंट इन्वॉल्वमेंट है विद प्लस माइनस माइनस प्लस, सो व्हाट वी विल डू इज़ वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द cos विद द सेम एंगल. जो भी एंगल उसमें इन्वॉल्व है उससे हम डिवाइड करेंगे. तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 1. प्लस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस. साइन थीटा बन जाएगा cos थीटा से डिवाइड करके tan थीटा
एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा विल बिकम 1, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एंड साइन थीटा विल बिकम tan थीटा. एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan π/4. प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी और माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी. सो व्हाट डज इट मीन, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये प्लस की आइडेंटिटी बनेगी. ठीक है, तो जो दो साइन लिखे हैं, तो अगर हम फर्स्ट वाले साइन को कंसिडर कर रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, तो तीनों के लिए ऊपर वाला साइन कंसिडर करेंगे, एक फॉर्मूला बनेगा. एंड अगर आप नीचे वाला साइन कंसिडर करते हैं ये माइनस, तो उस केस में यहाँ पे प्लस होएगा और यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला बनेगा. तो ये ऐसे करके हम दो आइडेंटिटी कंबाइन करके लिख सकते हैं. तो ऊपर वाला साइन कंसिडर करना है तो तीनों में वही वाला साइन कंसिडर करेंगे, और नीचे वाला साइन कंसिडर करना है तो तीनों में ही हम नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके ये भी काफ़ी पॉपुलर है, क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए जब भी कॉस एंड साइन की इन्वॉल्वमेंट आती है विद द सेम एंगल और इस पैटर्न में लिखे हैं तो हम कॉस से डिवाइड करते हैं एंड देन वो एक स्टेप के बाद tan का फॉर्मूला बन जाता है. इसके अलावा वन मोर पॉपुलर कैटेगरी इज़ देयर एंड विच इज़ दिस 1 + sin थीटा. अगर 1 + sin थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो बच्चा 1 एज पर द क्लास 10th आइडेंटिटी इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर सम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर विद द सेम एंगल, राइट. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, कोई भी एक एंगल ले सकते हैं. वी आर टेकिंग एंगल एज θ/2. वाई वी आर टेकिंग ओनली θ/2, बिकॉज यहाँ से साइन थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है 2 sin θ/2 cos θ/2. तो हमने क्या किया है, हमने इस 1 को रिप्लेस किया है विद दिस एंड साइन थीटा को रिप्लेस किया है विद दिस फॉर्मूला. ठीक है, ये साइन थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी है. तो इससे हुआ क्या, इससे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये a स्क्वायर बनेगा, ये b स्क्वायर एंड ये बन गया 2ab. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. सो यूजिंग दैट ओनली वी कैन राइट इट विल बिकम फॉर्मूला ऑफ साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 होल स्क्वायर, राइट. ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ अगर ये साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है तो अब चेंजेस करते हैं. अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो कहाँ चेंजेस आएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, और बिकॉज यहाँ माइनस है तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कैटेगरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिकम a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, राइट. तो ये 6 कैटेगरीज़ हैं जो हमारी सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करती है. इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है, लेकिन वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th वाला है, तो आपको जितनी आइडेंटिटीज़ याद है उतनी आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, बट हाफ एंगल दैट इज़ ये वाली cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये अच्छे से याद होनी चाहिए. ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, और ये तो काफ़ी ही पॉपुलर है. 1 - cos x, 1 + cos x, sin x, ये काफ़ी पॉपुलर आइडेंटिटीज़ है, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है, रूट आते हैं तो किस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करना है, 1 - x 1 + x दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो x को क्या पुट करना है, एंड अगर 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा का पैटर्न है तो क्या करना है. अब स्टार्ट करते हैं विद सम क्वेश्चंस. सो दे आर सम क्वेश्चंस, दे आर सेइंग राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड यू कैन सी द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटेनिंग हैवी आर्ग्यूमेंट्स. तो जब भी हैवी आर्ग्यूमेंट्स होगा तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जिससे फॉर्मूला बन जाए नया पुराना कोई भी, जिससे हम आगे फर्दर सॉल्व कर सके, राइट. सो इन द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर की इन्वॉल्वमेंट है. सो वी विल बी पुटिंग x एज tan थीटा, राइट. तो अगर हम x को tan थीटा पुट करते हैं तो हमारा ये जो है क्वेश्चन विच इज़ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, राइट. एंड वी नो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो सेकेंड थीटा बचेगा, सो इट विल बिकम सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. तो अब इसे साइन कॉस में चेंज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. इट विल बिकम tan इनवर्स, सेकेंड होता है 1/cos, एंड अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इट विल बिकम 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा. जो डिनोमिनेटर है दोनों के cos थीटा वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट. नाउ 1 - cos थीटा आ गया. जब भी 1 - cos थीटा आता है नॉर्मली वी यूज़ दी आइडेंटिटी जो अभी हम सीख के आए हैं, एंड विच सेज दैट 1 - cos थीटा इज़ 2 sin स्क्वायर θ/2 एंड sin थीटा इज़ 2 sin θ/2 cos θ/2, राइट. तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ. यहाँ से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड एक साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो जो बचेगा हमारे पास दैट विल बी tan इनवर्स
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू टैन थीटा बाई टू, tan इनवर्स tan को नलीफाई करेगा, यू विल गेट थीटा बाई टू. बट वट इज़ थीटा? जब भी आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा विल बी tan इनवर्स x. ठीक है, तो जब tan यहाँ जाएगा तो इन्वर्स बनेगा, सो थीटा विल बी tan इनवर्स x. तो फाइनल आंसर इज 1/2 इंटू थीटा विच इज tan इनवर्स x. सो दिस इज द फाइनल आंसर. 1/2 tan इनवर्स x is the final answer, right? Now the question number 2. So start with the question number 2. So in the question number 2 you can see it is tan inverse of something. So उस something में हमने सीखा हुआ है कि हम substitution कैसे करते हैं. So in this question it is containing 1 upon root of x square minus 1. So because of that we will put x as secant theta और cosecant theta, right? तो secant cosecant आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है. So I am putting x as cosecant theta or I can put x as secant theta. So from here theta will be secant inverse x. So now start. So it will become tan inverse 1 upon secant square theta minus 1. And secant square theta minus 1 is tan theta. So it will become 1 by tan theta, and 1 by tan theta is cot theta, right? So बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, ये नलीफाई नहीं होगा. नलीफिकेशन के लिए दोनों सेम होने चाहिए, अंदर भी tan होना चाहिए या बाहर cot होना चाहिए, राइट? तो हम अंदर वाले को ईजिली tan में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग क्लास 10th फॉर्मूला. cos कैन बी रिटन एज cot कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा. तो यहाँ से tan इनवर्स tan को नलीफाई करेगा एंड वी विल गेट पाई बाई टू माइनस थीटा. वट इज थीटा हेयर? सो थीटा इज secant inverse x, you can see here. So final answer will be pi by 2 minus secant inverse x. This is the final answer, right? Okay, now the next is tan inverse root of 1 minus cos x 1 plus cos x. So we are having its identity, and using that it will become 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. So you can see 2 से 2 cancel हो जाएगा, and sin square by cos square is tan square, but root है so tan x by 2, and tan inverse tan को nullify कर देगा, and the final answer is x by 2. So final answer is x by 2. Now this question. So ये हमने लिखा था substitution में कि whenever cos and sin with the same angle, so we have to divide with the cos with the same angle. So it will become 1 minus tan x upon 1 plus tan x, and this is the identity of tan pi by 4 minus x because x is there, right? So tan inverse tan को nullify करेगा, and the final answer will be pi by 4 minus x, right? तो ये काफ़ी simple question है. You can see these are 2 markers. नेक्स्ट पे आते हैं. सो नेक्स्ट इज दिस tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ कंटेनिंग x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ a. सो वी विल बी पुटिंग x एज a साइन थीटा. कॉस थीटा भी ले सकते हो आप, a साइन थीटा भी ले सकते हो. तो यहीं से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, सो थीटा विल बी, पहले a जाएगा डिवाइड में x बाई a, एंड देन साइन आएगा साइन इनवर्स. सो थीटा विल बी दिस, राइट? ओके, अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे. सो इट विल बिकम tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, एंड देन इट विल बी a साइन थीटा, एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर a स्क्वायर कॉमन लोगे रूट से तो a बन जाएगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, बट रूट है तो ओनली कॉस थीटा. सो a से a कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, एंड tan इनवर्स tan को नलीफाई करके आपको थीटा प्रोवाइड करेगा, एंड थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई a. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? 6th पे आते हैं. सो यू कैन सी इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ a. तो a की टर्म्स में हमें कंसिडर करना है और कुछ नहीं, बट इस टाइप का हमने सब्सटीट्यूशन में कहीं लिखा नहीं, डिफरेंट है ये, राइट? तो हमने इस टाइप का सब्सटीट्यूशन में नहीं लिखा, तो कुछ और फॉर्मूला लग रहा होगा, कुछ और होगा इसमें. अब अगर a को अभी के लिए हम भूल जाते हैं तो क्या बचेगा? 3x माइनस एक्स क्यूब. a को 1 मान लो, 1 माइनस 3x स्क्वायर. a को 1 मान लो, मानो a 1 है, और उससे a हट जाएगा और देखो क्या बनता है, ये बनेगा. एंड इसमें सोचो x को क्या पुट करेगी, ये फॉर्मूला बन जाए.
So if you put x as tan theta, then it will be look like 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, and which is the identity of tan 3 theta. इसलिए आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटीज़ ही आपकी हेल्प करेंगी. सो हेयर वी विल पुट एक्स एज tan थीटा, बट ए को तो हमने गायब किया था, ए का रोल तो है, तो करना क्या है कि एक्स को पुट तो वही करना है बट इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि हमने उस टाइम ए कंसिडर नहीं किया था. अब एक्स को अगर हम ये पुट करते हैं, थीटा ए के ये निकाल लो क्योंकि एंड में उसका रोल है. सो पहले ए जाएगा डिवाइड में एंड देन टैन बन जाएगा टैन इनवर्स. सो ये सब्सटीट्यूशन हमें करना है. अब सब्सटीट्यूशन करने के बाद टैन इनवर्स 3 a square into x, so a square into x it will become a cube tan theta minus a cube tan cube theta divided by a cube minus 3a cube tan square theta, right? So you can see overall a cube common है जो कि cancel हो जाएगा and then we will get 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta, and which is the identity of tan 3 theta. So tan inverse tan को nullify करेगा, you will get 3 theta and theta is tan inverse x by a, so 3 tan inverse x by a will be the final answer. So this is the final answer, right? Now the next, so here sin inverse 3x minus 4x cube, अगेन सब्सटीट्यूशन करना है, कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करना है कि फॉर्मूला बने. तो अगर x को हम साइन थीटा लेते हैं तो यू कैन सी इट विल बिकम साइन 3 थीटा आइडेंटिटी. यहीं से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए. अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो इट विल बिकम साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड साइन इनवर्स विल रिमेन सेम. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन 3 थीटा. साइन वर्स साइन को नलीफाई करेगा, यू विल गेट 3 थीटा एंड थीटा इज साइन वर्स एक्स. सो द फाइनल आंसर इज 3 साइन इनवर्स एक्स, राइट? सेम इन दिस, सेम प्रोसेस है. ये कॉस थीटा का फॉर्म, कॉस थीटा पुट करते हैं तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पुट कर बनेगा. सो इफ एक्स इज दिस, थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्स. नाउ यू विल सब्सटीट्यूट, सो इट विल बिकम कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, and which is the identity of cos 3 theta, and that is 3 theta. and what is theta here? यहाँ से थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है, सो cos inverse x. so final answer is 3 cos inverse x. these are maximum 2 markers. 1 marker भी आ सकते हैं, 2 markers भी आ सकते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा के नहीं आएंगे. now next question देखते हैं. so next question is this is you can say 3 marker या 5 marker भी आ सकता है एंड 3 मार्कर भी आ सकते हैं. दिस इज़ नॉट 2 मार्कर, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है. तो यू कैन सी आर्ग्यूमेंट काफ़ी हैवी है. रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, रूट भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, फ्रैक्शन भी है, राइट? तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन तो हेल्प नहीं कर पाएगा. सब्सटीट्यूशन वहाँ हेल्प करता है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं लिखे हैं, वेरिएबल है, एक्स है, एक्स की टर्म में अजीब सा है. बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगेंगी. एंड रूट है तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं. तो अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर में जो माइनस लिखा हुआ है इसका साइन चेंज करके प्लस लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. तो ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट है और इस आर्ग्यूमेंट को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेम से, लेकिन साइन चेंज करते हुए, राइट? तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं. तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है सेम से. यहाँ बीच में लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड साइन होने चाहिए इसके डिफरेंट, राइट? सो इट शुड बी प्लस, दोनों प्लस होने चाहिए. तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर कॉट इनवर्स
हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर इज लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो डैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो डैट विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स minus 1 minus sin x, right? So this will be the denominator. Now what about the numerator? Numerator is a plus b into a plus b, so it will become a square plus b square plus 2ab. So a square will be 1 plus sin x, b square will be 1 minus sin x, and 2ab will be 2 into root of this, and that will become root of 1 minus sin square x, right? अब आगे करते हैं. So you can see cot inverse this 1 plus this 1 will become 2, sin x से minus sin x cancel, plus 2 root of 1 minus sin square x is root of cos square x, which is cos x only. So this is the numerator part. Now see the denominator, ये ब्रैकेट है माइनस है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो बच्चा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ sin x. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट cot inverse 1 plus cos x upon sin x, and we know their identities, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी, काफ़ी यूज़ होती है, तो उन्हीं को हम यूज़ करेंगे. 1 plus sin x is 2 cos square x by 2, and sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2, right? तो अभी you can see that 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, you will get cot inverse cos by sin is cot x by 2, and cot inverse बाहर है, cot अंदर है, nullify हो जाएगा, and the final answer will be x by 2. So this is the final answer. That means this this entire expression is equal to only x by 2. So this is the simplest form, right? Okay, अब next पे आते हैं. Next is this. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं. हमें x को कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करना है जिससे कोई आइडेंटिटी बने. तो 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम कॉस थीटा को प्रेफरेंस देते हैं, एंड यहीं से आप थीटा भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी एंड में इन्वॉल्वमेंट होती है. तो अगर हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं, इट विल बिकम tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, राइट? रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 plus cos theta plus root of 1 minus cos theta, right? So now we can use their identities. We know their identities. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, but it is written with the root, so we will write with root, minus 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 divided by root of 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and root of 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, right? So we can see overall we can take root 2 common. root 2 है, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है सब में root 2 है, तो root 2 कॉमन लेंगे एंड वो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? रूट ऑफ cos square theta by 2, एंड रूट है स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट cos theta by 2, फ्रॉम हियर यू विल गेट sin theta by 2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos थीटा बाई 2, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट sin थीटा बाई 2. ये भी हमने सीखा है, जब भी cos साइन आते हैं विद द सेम एंगल तो हम cos से डिवाइड करते हैं वही एंगल लेते हुए. तो अगर आप cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं ओवरऑल, यू विल गेट 1, यू विल गेट हियर tan थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan थीटा बाई 2, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2. सो अब tan इनवर्स tan को नलीफाई करेगा एंड यू विल गेट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2. वट वॉज थीटा? थीटा की वैल्यू पुट करनी है. थीटा है हमारे पास cos इनवर्स x, तो अभी हमें ये भी पुट करना है. सो द फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2. थीटा इज cos इनवर्स x, सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है. अभी नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज दिस साइन इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x बाई रूट 2. तो यहाँ पे अगेन सब्सटीट्यूशन हेल्प नहीं करेगा, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो हमें कुछ और करना होगा. सो व्हाट वी कैन डू, साइन इनवर्स एज इट इज, आई कैन राइट दिस रूट 2 एज 1 बाय रूट 2 साइन x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x, right? And now I can replace this 1 by root 2 with their values. Like I can write 1 by root 2 as
cos थीटा cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, sin x एज इट इज़ 1/√2 sin पाई बाय 4 होता है cos x एज इट इज़, राइट। तो आप देखेंगे 1/√2 तो sin पाई बाय 4 भी होता है, cos पाई बाय 4 भी होता है। तो हमने इसी को cos और इसी को sin क्यों लिखा? बिकॉज बच्चा हम चाहते हैं कि ये साइन का फॉर्मूला बने। साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। हम साइन का फॉर्मूला क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि बाहर साइन इन्वर्स है। अगर बाहर कॉस इन्वर्स होता तो हम अंदर कॉस का फॉर्मूला बनाते हैं, अंदर कॉस के फॉर्मूले में ये साइन लिखते हैं और इसे कॉस लिखते हैं, क्योंकि साइन कॉस का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस की बात करें, ठीक है। तो इसलिए साइन इन्वर्स बाहर है तो हमें अंदर वाला साइन का फॉर्मूला बनाना है। साइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो टर्म्स हैं, अगर यहाँ साइन है तो कॉस भी आना चाहिए, और अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन भी आना चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले वाले को कॉस पाई बाय 4 और दूसरे वाले को साइन पाई बाय 4 लिखा है। सो नाउ वी नो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। अब ये साइन व साइन को नलीफाई कर देगा एंड द फाइनल आंसर विल बी एक्स प्लस पाई बाय 4, राइट। नाउ द नेक्स्ट, cos इनवर्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये तीन नंबर्स 3, 4 एंड 5, दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लें तो उसमें ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 आएगा। दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकती हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का, 5, 12 एंड 7, 5, 12 एंड 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं इससे हमें हेल्प मिल गई। कैसे हेल्प मिल गई? कि ये जो नंबर्स हैं इससे हमें ये पता लग गया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं तो यहाँ पे साइन एंड कॉस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखो साइन एंड कॉस की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है। आई कैन राइट दिस एज कॉस इनवर्स 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स। बाहर है कॉस इनवर्स तो हमें ये कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो आई विल पुट 3/5 एज साइन ए, राइट। अब अगर 3/5 साइन ए है, मान लो ये ए है और ये 3/5 है, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, एंड वी नो दिस इज 4। तो इफ साइन इज 3/5 व्हाट विल बी कॉस ए? कॉस ए विल बी एज पर द ट्राइंगल 4/5 एंड सी दिस इज ऑल्सो देयर। तो जब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे अगर उनमें से आप किसी एक को साइन लेते हो ऑटोमेटिकली उसी एंगल के साथ दूसरा कॉस बन जाएगा, अगर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं तो इनकी हेल्प से I can write this as cos inverse. We can replace 3/5 by sin a, sin x as it is, plus this is cos a and cos x as it is. And sin a, sin x plus cos x is the formula of cos a minus x, or you can write x minus a, right? तो ये a minus x का फॉर्मूला भी हो सकता है या x minus a का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो cos के लिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब cos इनवर्स cos को नलीफाई करेगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा a माइनस एक्स, या फिर आपके पास x माइनस ए भी आ सकता है। तो a माइनस एक्स या x माइनस ए कौन सा लेते हैं बच्चा? हम प्रेफरेंस देते हैं पॉजिटिव वैल्यू को, कि जो पॉजिटिव एंगल है वो हम लिखेंगे, राइट। तो वी विल राइट, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस में कि a माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। अगर मान लो कॉस इनवर्स फॉर्मूला बनाए कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 का, ठीक है। अब आपको पता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 कॉस के साथ लिखा है, तो कॉस के साथ तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। क्यों दोनों वैलिड है? क्योंकि हमने सीखा हुआ है कॉस ऑफ माइनस ए सेम एज कॉस ऑफ ए, राइट। तो ये दोनों वैलिड है, चाहे हम ए माइनस बी लिखें या बी माइनस ए, लेकिन नलीफाई करने के बाद आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? क्योंकि जो कॉस की रेंज है कॉस इनवर्स की वो है 0 to पाई, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव नहीं है। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 पॉजिटिव है तो हम ये लिखेंगे। अगर कोई बच्चा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 लिख के आ जाता है तो वो गलत है, पॉजिटिव आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि ए एक्स से ज़्यादा है या एक्स ए से ज़्यादा है, तो जब हमें पता नहीं होता मॉड्यूलस लिख के आते हैं कि पॉजिटिव लिखना है, जब हमारे पास वैल्यूज़ होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख के आ जाएंगे, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज मॉड ऑफ ए माइनस एक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर, यू कैन सी 12 है, 5 है, 13 है, तो ये तो एक अगर साइन कंसिडर करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो आई कैन राइट 12/13 एक्स प्लस 5/13 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो 12/13 एंड 5/13 तो हो गया, एंड ऑल्सो x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसमें जो मिसिंग है डिनोमिनेटर वो 1 एज्यूम करोगे तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। अगर आप इसको कॉस लेते हो ये ऑटोमेटिकली साइन आएगा, ठीक है, कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अलग अलग करके लिख लेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कंसिडर करना। बाहर कॉस इन्वर्स है तो ये हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है, तो आई विल पुट कॉस एज, आई विल पुट 12/13 एज कॉस ए। अगर कॉस ए ये है तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? इफ़ दिस इज ए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे बनेगा, इट विल बी 5, एंड इफ दिस इज कॉस ए देन व्हाट विल बी साइन ए? साइन ए विल बी परपेंडिकुलर विच इज़ 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, एक्स पे। सो इफ़ आई कंसिडर एक्स एज कॉस बी, एक्स एज कॉस बी, देन व्हाट विल बी साइन बी? साइन बी क्या होता है? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज साइन बी, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो इफ़ आई पुट दीज वैल्यूज, सो इट विल बिकम 12/13 हमने लिया है कॉस ए, एक्स हमने लिया है कॉस बी, 5/13 हमने लिया है साइन ए, एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन बी, एंड विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए कुछ भी हो सकता है। अगेन जब ये नलीफाई करेगा तो हम मॉडुलस में लिख के आएंगे, सेम रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं tan इनवर्स ऑफ दिस। तो बच्चा अगेन यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, x की टर्म में लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट, तो सब्स्टिट्यूशन की हम हेल्प लेंगे। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन से पहले ये समझना होता है कि फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, इस टाइप का हमने नहीं सीखा है। तो पहले इसको मैनिपुलेट करेंगे। आई कैन राइट दिस एज 3 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 3x, राइट, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई कैन राइट दिस एज 3 रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स विल बी रूट एक्स होल क्यूब, राइट, एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स को रूट एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट एक्स एज इट इज़, देन इट विल बिकम रूट एक्स होल क्यूब। तो हम एक्स रूट एक्स को रूट एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x को आई कैन राइट रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये रूट एक्स की जगह अगर हमें tan थीटा मिल जाता है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पुट करेंगे रूट एक्स को tan थीटा। सो पुट रूट एक्स एज tan थीटा, एंड फ्रॉम हियर थीटा विल बी tan इनवर्स रूट एक्स। तो it will be tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, right. So it will become, brackets लगा देंगे carefully, so it will become the formula of tan 3 theta and tan inverse of tan 3 theta. Tan inverse tan को nullify करेगा, you will get 3 theta, and what is theta? Theta is tan inverse root x. So final answer is 3 tan inverse root x. This is the final answer. In the next lecture, we will be understanding some basic identities of inverse trigonometric functions and how can we convert one inverse trigonometric function into another inverse trigonometric function. And using these two topics, we will be covering the remaining questions. Thank you.